Since last 3-4 working days, I am regularly giving some interviews, looking for change, job change, a new position. And we all know that the AI is going in trend. There are lots of courses from which you can learn AI, and obviously we are pursuing that courses. I have completed lots of the courses, and I am using that AI. And when you use uh, that content, sometimes it's clearly visible that you have used AI. So, in my last 3-4 encounter with different interviewers, I don't know how much I'm wrong and how I'm 100% correct or not, but I get that kind of vibe or that kind of impression that uh, the the employers or the clients or the senior professionals who are not so much into IT, that they are so much into business thing but not in IT and technology and typical data marketing, they have a really wrong impression of AI and the persons who use AI, and they are thinking that we are some kind of lazy guys who are taking a shortcuts, or some negative impression is there, which is really wrong perception. You know what? AI can save a little bit of our time. It can amplify our skills. Obviously, when I am writing for a PPT, for giving a proposal or assessment or report, my vocab will be limited. Obviously, I'm not a native English speaker, but I can understand those vocab, and I can't remember all those words at a time being a human brain. But AI can help a lot with that for me, and that's all it do. Okay, we have to brainstorm a lot. We have to find out some keywords. We have to understand the product on which we are providing assessment or proposals. We have to understand the target audience, the competitive analysis, and we have to understand the market. And then we have to do a lots of rewrite on that AI tool. We have to generate a great output. Then we do lots of copywriting and proofreading. It takes time. It's not just like ChatGPT दिखता है कि सडनली हमने एक प्रॉम्प्ट डाला और आ गया, कुछ भी प्रॉम्प्ट डाला और कंटेंट आ गया. नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा गया है इसको. इसलिए इसको इंजीनियरिंग इसलिए कहा गया कि उसमें ब्रेन और ब्रेनस्टॉर्मिंग और टेक्निकलिटीज़ और एक्सपीरियंस लगता है. सो भाई टाइम लगता है, ठीक है ना. अभी भी एक PPT बनाने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, ठीक है. आप एक कंटेंट जनरेट करोगे, उसकी आउटलाइन वगैरह बना के प्रूफ रीडिंग कॉपी राइटिंग सब कुछ कर करा के कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करा के 1 घंटा लगता है कि अच्छा सा कंटेंट PPT के निकाल के लाने के लिए या रिपोर्ट के लिए निकाल के लाने के लिए. और फिर उसको PPT में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है. कि ऐसा कोई AI टूल नहीं है कि आप उसमें कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया, उसने आपको PDF बना के दे, परफेक्ट PPT बना के दे. नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. वो बस हमारा बहुत सा टाइम बचाता है. हम पावर पॉइंट के ऊपर एनिमेशंस कर रहे हैं, वेस्ट कर देते हैं, जो कि हम डिजिटल मार्केटर के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं. तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम का बैगेज है ना, जो उसको बचा रहा है बस वो, ठीक है ना. उसके बाद भी हम उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, कंटेंट को पढ़ना पड़ता है, पूरी PPT को बार बार हमें देखना पड़ता है. तो प्लीज़ इंटरव्यू स्टार्ट होते ही ऐसा इंप्रेशन मत दिया करिए कि कोई AI यूज़ कर रहा है तो वो कोई चीट कर रहा है, ठीक है ना. तो भाई एक पर्सन नहीं है, मैं डिफरेंट जगह से, डिफरेंट IT हब्स, डिफरेंट सिटीज़ के, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लोगों से इंटरव्यू हुआ. एक इंटरव्यू मेरा आज ही हुआ, और उसके बाद सर क्यों इंप्रेशन आपने बना लिया है कि मैं 30-40 AI टूल यूज़ करता हूँ. मुझे याद भी नहीं रहता है किस AI टूल से क्या बनाया मैंने. एक PPT बनाने के लिए इस AI टूल के बाद भी, AI टूल को यूज़ करने के बाद भी मुझे 2-3 घंटे लगते हैं. तो कुछ तो कारण इसकी वजह से लगते हैं यार. देयर मस्ट बी सम रीज़न. स्टिल आई एम इन्वेस्टिंग माई 2-3 आवर्स इन डिज़ाइनिंग अ PPT और रिपोर्ट और प्रपोजल और समथिंग. मेरा करेंट एम्प्लॉयर है जो इंटरव्यूज़ में दे रहा हूँ, उन सब पे पता नहीं AI टूल का क्या इंप्रेशन. और भाई मैं उसके वी हैव टू पे फॉर दैट. वेरी रेयर few of AI tools are free, and they have lots of limitation in free version. So I am actually paying for that also. So I don't understand that. और फिर आपको उधर से ऐसी वाइब्स आती है ना, फिर आप इंटरव्यू में आपका मन लगेगा नहीं. ऑनेस्ट सी बात है, आप 100% दे पाओगे नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो सोच के चल रहे थे, आपके ऊपर एक इंटरव्यू का इंप्रेशन पड़ता है तो वो समझते कि वो तो आपके साथ टांग खिंचाई कर रहा है या मजाक बना रहा है AI यूज़ करने के नाम पे. तो प्लीज़ AI एक टेक्निक है. इस हिसाब से तो गूगल पे एड्स चलाना, कीवर्ड्स प्लानिंग करना, सब कुछ चीटिंग ही हो जाएगा, ठीक है. कंटेंट लिखना, गूगल के क्रॉलर्स को अट्रैक्ट करना, अच्छा कंटेंट लिख के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना,
या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रीमार्केटिंग करना, क्योंकि आपका उसका ईमेल है कस्टमर का, आप उसको बार बार रीमार्केटिंग कर रहे हो, ये सब फिर चीटिंग और फ्रॉड ही हो जाएगा हिसाब से तो, ठीक है ना। तो एआई कोई फ्रॉड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ईजी वे आउट नहीं है, ठीक है। इट्स एन ऑल टुगेदर न्यू टेक्निक जो हमें सीखनी पड़ती है, उसको अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लिटिल बिट ऑफ क्वालिफिकेशंस भी चाहिए होती हैं किसी एक्सपर्ट से। सो प्लीज़ ऐसा इंप्रेशन मत दीजिए। और अगर आपको लगता है कि एआई कोई ऐसी चीज़ है जिसके बाद हमारा काम बहुत ईजी हो गया तो उसको हल्का पे दो, या इसको प्रोफेशनल को हल्के में ले लो, इस बंदे को हल्के में ले लो, तो फिर आपको रिपोर्ट और पीपीटी प्रपोजल देख के ही आप वहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। आप इंटरव्यू करके उसकी बेइज्जती करने की उसे बुलाइए मत, ठीक है। एआई कोई इजी वे आउट नहीं है, मेहनत लगती है उसको सीखने में। उससे जैसे हम एक पर्सन से बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल जनरेट करना होता है, किसी के पास वो नहीं होता, उसको जनरेट करने में कईयों को डेकेड्स लग जाते हैं, तब वो एक अच्छे स्पीकर बनते हैं जाके, ठीक है ना। वैसे ही एआई से बात करना भी एक टेक्निक है, एक आपको टेक्निक बिल्डअप करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने अपने आवर्स और आवर्स वेस्ट किए हैं एआई के ऊपर काम करते करते। प्रैक्टिस की वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ों की भी एआई यूज़ करता हूँ, ताकि प्रैक्टिस तो मैं देख लूँ क्या इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या आउटपुट देता है, कैसा रिएक्ट करता है। वो मैंने अपना इन्वेस्ट किया है, वो टाइम, वो क्रिएटिविटी, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, तब मैं आपका एम्प्लॉयर का, क्लाइंट का टाइम बचा पा रहा हूँ। सो प्लीज़ हम एआई यूज़ करने वालों कोई ऐरा गैरा आलसी इजी वे आउट ढूंढने वाला, सस्ते में काम करने वाला ऐसा कुछ मत समझिए। और इंटरव्यू में ऐसा इंप्रेशन कम से कम स्टार्टिंग में तो मत दिखाइए। तो वैसे भी इंटरव्यू देने वाले का आपके लिए इंप्रेशन बनेगा, उसके बाद वो इंटरव्यू देगा उसका मन वैसे भी नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी इमेज तो वैसे भी ख़राब हो गई उसके लिए। सो प्लीज़, एआई एक पूरा नया टेक्निकल रील्म है, एक नई जनरेशन है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसको मशीन ने रिप्लेस किया, उसको आईटी टेक्नोलॉजी रिप्लेस किया, अब आईटी को एआई रिप्लेस कर रहा है, मशीन लर्निंग रिप्लेस कर रही है, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। हम कोई फ्रॉड नहीं है अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है ना। हम फ्यूचर के लिए अडेप्ट हो रहे हैं, हम कोई इजी वे आउट नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम एआई यूज़ कर रहे हैं और प्राउडली यूज़ कर रहे हैं, एंड यू गाइज मस्ट रिस्पेक्ट इट।